Hello everyone. In the last video of this chapter, Reproduction in Organism, we already studied about the events that take place during sexual reproduction. We also saw that there are three different events that are pre-fertilization, fertilization and post-fertilization. In the last video, we already studied about the pre-fertilization. In this video, we will study about fertilization and post fertilization. So, let us first begin with fertilization. So, fertilization is nothing but what? It is a fusion of gametes to form zygote. Now, this process of fusion of gametes to form zygote is also known as syngamy. So, this fertilization process can also be called as syngamy. Right now, in each and every organism till now, we studied that they carry out the fertilization process and then after they give rise to zygote and then to a new organism. But there are some organisms who without fertilization give rise to the new organism, and that process is known as parthenogenesis. This is an exception case of a few organisms. So those organisms are rotifers, honeybees, some lizards and birds such as turkey. Fine. So see, depending upon where exactly this syngamy occurs, the fertilization is divided into two types, that is internal and external, right? So we'll see where exactly the zygote formation will take place, whether it is taking place inside the body of an organism or whether it is taking place outside the body of an organism, right? So see, if a syngamy occurs inside the body of organism, then such type of fertilization is known as internal fertilization. If syngamy occurs outside the body of organism, that is in an external medium, that is water, then such process of fertilization is known as external fertilization. Right? You have given distinguish between the internal and external fertilization. So let us see. So first difference was if it takes place inside the body of organism, it is internal fertilization. Next is if it is outside the body of organism, it's an external fertilization. Let's see the second point. The egg in an internal fertilization will be formed inside the female body, right? And here this egg will be fused by the male gamete, right? Because we know that male gamete are what? Motile. They will come and fuse to the egg. But in a seed plants, that is in a higher plants, male gametes are non-motile. So to this male gamete, if it have to reach to the female gamete, it have to come through a tube known as pollen tube. Fine. We already saw in the last video how the male gamete, with the help of pollen tube, it reaches to the ovary and then to the embryo sac and it fuses to the egg, right? Whereas in external fertilization, both the sexes are going to show a great synchronomy. Fine. Next point, large number of sperms are produced in an internal fertilization, but in comparison to the sperms, if we see to the eggs, those eggs are either one or two or three. They are not produced in a large number. Fine. Whereas in external fertilization, both the gametes are produced in a large number, so that the syngamy occurs and there are chances it improves the fertilization process. Fine. Let us see the disadvantage of both the fertilization. For internal fertilization, disadvantages: vulnerability decreases as offsprings are inside the female body. You cannot consider this as a disadvantage because it is considered as what? Advantage also, because there will be no risk of any offsprings to get harmed. Why? Because it is already getting formed inside the female body. Whereas in external fertilization, those gametes may get attacked by the predators, so till they reach to the adulthood, they will be in under
threatening condition. Fine. Let us see the example. Example for internal fertilization is fungi, reptiles, birds, mammals, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, and angiosperms. Whereas in external fertilization, the example is of aquatic organism such as algae, frog, bonyfish, and so on. Fine. So let us see. So this was all about the fertilization, that how the zygotes are formed, and depending upon where the syngamy is going to occur, it is divided into two types, internal and external. So now let's see the third event, that is post fertilization. So see, the event which is going to take place after the formation of zygote is considered as what? Post fertilization. And we already saw this post fertilization is divided into two types. It have the two events. One is the formation of zygote and another is a embryogenesis. So see, we already know that universally all the zygote will be in the form of what? Diploid condition. Fine. So see, if the zygote is formed by a external medium, it will be considered as what? In an external fertilization, zygote will be formed in what? External medium. Whereas if the fertilization have taken place internally, zygote will be formed inside the body. Now this is totally dependent upon the type of life cycle the organism is going to carry out and the environment that they live into. Next, so see, in algae and fungi, what you will see, the zygote is going to develop a thick wall around it. So what will happen? Because of this thick wall, it will become resistant to desiccation and damage. Now resistant का मतलब क्या होता है कि उसे कोई भी हार्श कंडीशन क्यों ना हो, उसके जाइगोट को कोई हार्म होने वाला नहीं है. डेसिकेशन मतलब ड्राइनेस, अगर एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस भी होगा तो भी जाइगोट को कोई हार्म होगा नहीं, राइट. एंड वंस द जाइगोट इज फॉर्म, इट विल अंडरगो अ रेस्ट कंडीशन बिफोर जर्मिनेशन. सो जर्मिनेशन के पहले ये जाइगोट थोड़ा रेस्ट करेगा, उसके बाद इट विल कैरी आउट द जर्मिनेशन प्रोसेस. नेक्स्ट, the organism which are going to carry out the haplontic life cycle. अगर ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म है जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कैरी आउट करने वाले हैं, तो वहाँ पे ये जाइगोट जैसी बनेगा. इट विल गेट डिवाइडेड बाय अ मियोसिस प्रोसेस. जैसे ही मियोसिस प्रोसेस में डिवाइड होगा, इट विल फॉर्म अ हैप्लॉइड स्पोर्स. अब ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स है, इट विल ग्रो इनटू हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स. फाइन. Now see, there's one important thing, that zygote is going to act like a vital link. Now ये vital link का मतलब क्या होता है कि zygote जो है, it is going to maintain a continuity in this species. मतलब generation after generation का जो भी continuity है, it will be maintained by a zygote. तो दो generation के बीच का जो main link जो है वो कौन है? zygote. हम ह्यूमन बींग्स का भी अगर हम देखेंगे तो वी आर ऑल्सो बॉर्न फ्रॉम अ सिंगल सेल कॉल्ड zygote. See now, so zygote is done in post fertilization. Now we'll see about the embryogenesis. Now see, the zygote बनने के बाद zygote have to get divided, right? It have to undergo either a mitotic division or meiotic division, depending upon which organism it is growing into, which organism. It is going to form what? Embryo. So it's a compulsion process कि zygote बनने के बाद क्या बनने वाला है? Embryo. और ये जो process है इसे हम क्या बोलते हैं? Embryogenesis. Fine. Now see, जैसे ही zygote बन गया, मैंने तुम्हें क्या बताया कि it have to undergo a division process. तो zygote जो है वो दो टाइप के प्रोसेस करने वाला है. एक तो वो सेल डिवीजन करेगा ही, उसके साथ इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू कैरी आउट अ सेल डिफ्रेंशिएशन. जो सेल डिवीजन से क्या होने वाला है? सेल डिवीजन से नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे. फाइन. एंड सेल डिफ्रेंशिएशन से क्या होगा कि ये जो नंबर ऑफ सेल्स जो इंक्रीज हो रहे हैं, उसी में से थोड़े बहुत सेल्स जो है वो क्या करेंगे? दे विल फॉर्म अ ग्रुप. एंड वही जो ग्रुप फॉर्म हुआ है वो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट? टिश्यूज़. हमें पता है ग्रुप ऑफ सेल्स हमेशा क्या बनाते हैं? टिश्यूज़.
ग्रुप ऑफ टिश्यूज क्या बनाएंगे, ऑर्गन, एंड वही ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म, राइट. सो सी व्हाट इज गिवन ओवर हियर, cell differentiation is going to help group of cells to form specialized tissues. तो ये group of cells क्या करेंगे, it will form a specialized tissues, that those tissues will form a specialized organs, and those organs will form a specialized organism. Fine. Now see we'll see in our animals and plants also how the embryogenesis takes place, and you can also see in an animal it is categorized on the basis of development of zygote outside और inside. So animals को भी अगर हमें categorize करना है तो वो भी categorize कैसे हम करते हैं कि ये development जो है zygote का वो कहाँ हो रहा है, it is either taking outside the body or it is taking inside the body, right. So depending upon that we have two types of animals, one is ovipary and another is vivipary. But now ovipary का मतलब क्या होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो अंडे देते हैं, राइट. एंड विविपेरी मतलब क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है दे विल कैरी देयर बेबी इनटू देयर वूम, जैसे ही वो डेवलप हो जाएगा इट विल गिव राइज टू न्यू बॉर्न. फाइन. सो सी ओवीपेरी क्या होता है, ओवीपेरियस एनिमल जो है वो क्या करेंगे, या तो फर्टिलाइज एग को ले करेंगे ना तो फिर अनफर्टिलाइज एग को ले करेंगे, राइट. सो मतलब बाहर वो क्या देने वाले हैं, अंडे. विविपेरी का मतलब क्या होता है, एनिमल्स आर गोइंग टू गिव बर्थ टू यंग वंस, मतलब कि वो लोग अपने वूम में पहले बेबी को ग्रो करेंगे एंड उसके बाद जैसे वो मैच्योर हो जाएगा, इट इज़ रेडी टू कम आउट, दोस बेबी विल बी ब्रॉट इनटू द वर्ल्ड. फाइन. नेक्स्ट सी इन ओविपेरी, जो फर्टिलाइज्ड एग जो है वो एक हार्ड कैल्केरियस शेल से कवर्ड रहता है. हम तुमने देखा होगा, अंडा देखा होगा वाइट कलर का, उसके ऊपर एक शेल होता है. जो शेल जो बना है उसे हम क्या बोलते हैं, कैल्केरियस शेल, मतलब इट इज़ मेड अप ऑफ व्हाट, कैल्शियम, राइट. इसीलिए वो हार्ड है. एंड वो शेल जो है वो अंदर के योक को, एम्ब्रियो को क्या करने वाला है, प्रोटेक्ट करने वाला है, एंड विल हेल्प टू डेवलप दैट एम्ब्रियो. फाइन. और ये जैसे ही ये एग को एक पर्टिकुलर इंक्यूबेशन पीरियड मिल जाएगा, वो इंक्यूबेशन पीरियड में पहले वो यंग वन को रेडी करेगा एंड आफ्टर दैट पीरियड वो क्या करेगा, यंग वन को इट विल हैचेस आउट, मतलब वो अंडे को फोड़ के आराम से वो ऑर्गेनिज्म बाहर निकल आएगा. फाइन. अब ये जो विविपेरी जो है उसमें क्या होने वाला है, जो ये यंग वन जो है कहाँ पे डेवलप होगा, इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट ओवीपेरी में यू विल सी कि ये जो यंग वन के चांसेस जो है सर्वाइवल के वो बहुत कम होते हैं, राइट. क्यों, क्योंकि ये फीमेल ऑर्गेनिज्म जो अंडे देती है वो कहाँ देती है, इन द ओपन एनवायरनमेंट. हमें ये भी पता है कि जब मुर्गी के अंडे हम लेके आते हैं तो क्या हुआ, वो मुर्गी के अंडे में से जो दूसरा मुर्गी निकलने वाला था, बेबी चिक जो निकलने वाला था, अब निकल पाएगा क्या, नहीं. क्या किया हमने, उसे फोड़ के खा गए. फाइन. सो देर आर लेस चांसेस. ऐसे ही बाकी बर्ड्स हैं, उनके भी ये जो ऑफस्प्रिंग, ये जो अंडे हैं, उनका सर्वाइवल का चांसेस कम हो जाएगा. वाई, बिकॉज देर आर मैनी अदर प्रीडेटर्स. ये तो सिर्फ मैंने अपना एग्जाम्पल दिया ह्यूमन बीइंग का, ऐसे बहुत सारे प्रीडेटर्स हैं, या फिर कोई कैलेमिटिक कंडीशंस हो जाएगी जिसके थ्रू वो अंडा जो है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है एंड एम्ब्रियो डेवलप नहीं हो पाता है. फाइन. वहीं अगर हम विविपेरी कंडीशन में देखेंगे तो ये जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वन जो है वो बढ़ जाते हैं. क्यों, क्योंकि जो बेबी जो ग्रो होने वाला है वो कहाँ ग्रो होने वाला है, इनसाइड द मदर्स बॉडी. तो उसको एक प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर मिलेगा और उससे कोई हार्म होने वाला नहीं है. एग्जाम्पल्स ऑफ ओविपेरी इज बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, वेयर एज विविपेरी का क्या है, ह्यूमन, काउ, लायन, टाइगर एंड सो ऑन. फाइन. Now let us see in a flowering plants ये जाइगोट कहाँ डेवलप होता है. फ्लावरिंग प्लांट्स में जाइगोट जो है कहाँ डेवलप होने वाला है, इनसाइड दी ओव्यूम. एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट डेवलप होना स्टार्ट होता है, तो फ्लावर का जो सेपल है, पेटल्स है, स्टेमन्स है, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, धीरे धीरे गिरने लग जाएगी. फाइन. लेकिन पिस्टल
इज गोइंग टू रिमेन अटैच्ड, राइट, पिस्टिल गिरने वाला नहीं है। अब एक बार ये जाइगोट फॉर्म हो जाता है तो बाकी सारे जो पार्ट है, देखो सेपल्स गिर गया, पेटल्स गिर गया, स्टेमेंस गिर गया, लेकिन पिस्टिल वही का वही है। सो पिस्टिल भी डेवलप होने में हेल्प करेगा। तो कैसे, लेट अस सी कौन सी चीज़ किस में डेवलप हो रही है। तो जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा, ओव्यूल्स जो है वो सीड में डेवलप हो जाएगा, ओवरी जो है वो फ्रूट में डेवलप हो जाएगा, एंड ये फ्रूट पे एक थिक वॉल बन जाता है जिसका नाम क्या है, पेरिकार्प, जो फ्रूट को क्या करने वाला है, इट इज़ गोइंग टू गिव अ प्रोटेक्शन, फाइन। एंड जैसे ही ये फ्रूट गिर जाएगा उसके बाद क्या होगा, उसके जो सीड्स है वो बाहर आ जाएंगे। तो जैसे ही सीड्स का डिस्पर्शन होगा, फिर एक फेवरेबल कंडीशन देख के वो सीड भी जर्मिनेट होगा एंड इट विल गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। सी इन दिस पिक्चर यू कैन सी क्लियरली कि फ्लावर का क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुआ। ये सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन ये सब क्या हो गए, विदर होना स्टार्ट हो गया, मतलब गिरना स्टार्ट हो गया। यू कैन सी पेटल्स हैव बीन ड्रॉप ऑफ। यहाँ पे ओवरी जो है वो स्वोलन होनी स्टार्ट हो गई है, राइट। फिर यहाँ पे सीड जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो गया है। फ्रूट जो है वो बड़ा 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 ग्रो होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन फ्रूट ग्रो कहाँ से हुआ है, फ्रॉम दी ओवरी, राइट। सो दिस इज हाउ द कन्वर्जन ऑफ फ्लावर टू दी फ्रूट, कैसे जाइगोट फॉर्म होगा, जाइगोट फॉर्म होने के बाद फ्लावर में भी कौन कौन से चेंजेस आते हैं, फाइन। अब ये जो डायग्राम है ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है, जहाँ पे ये डायग्राम में 4 डायग्राम है, चारों डायग्राम में यू कैन सी इट इज़ डिनोटेड बाय एस एंड पी। अब एस जो है वो क्या है, सीड है, राइट। ये अलग अलग फ्रूट के डायग्राम्स हैं, राइट। तो एस जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, सीड है वो फ्रूट का, एंड पी जो है वो क्या है, पेरिकार्प, मतलब कि फ्रूट के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म हो गया है, वो क्या है, पेरिकार्प, फाइन। सो एक्चुअली चैप्टर गेट्स ओवर, फाइन। सो लेट अस रिवाइज कि हमने ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से चीज़ें पढ़ी थी, राइट। सो लेट अस फास्ट रिवाइज दोज थिंग्स। सो पहले तो हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, राइट। सो रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन इज नथिंग बट व्हाट, इट्स अ गिविंग बर्थ टू द न्यू वन फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। हमने देखा कि रिप्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। फिर असेक्सुअल में हमने अलग अलग मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखे अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। तो हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या देखा, इट विल टेक प्लेस थ्रू बाइनरी फिजन, बर्डिंग एंड मल्टीपल फिजन। फिर हमने फंजाई एंड एल्गे में देखा, तो इट इज़ गोइंग टू कैरी आउट व्हाट, स्पोर्युलेशन, कौन कौन से प्रोसेस से, जूस्पोर्स, कोनिडिया, बर्ड्स एंड गेम्यूल्स। फिर हमने एनिमल में देखा, तो उसका कौन सा प्रोसेस देखा, फ्रेगमेंटेशन। फिर प्लांट्स में क्या देखा कि इट इज़ गोइंग टू कैरी आउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मतलब कि वो रूट के थ्रू होगा, स्टेम के थ्रू होगा, लीव्स के थ्रू एंड पिपल। और स्टेम में अलग अलग टाइप्स भी देखे, फाइन। फिर लेट अस कम टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या देखा कि 2 चीज़ें देखी। एक तो हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 फेजेस होते हैं, कौन कौन से फेजेस, जुवेनाइल जिसे हम वेजिटेटिव भी कहते हैं, रिप्रोडक्टिव, सेनेसेंट एंड डेथ। एंड हमने और एक चीज़ देखी, क्या देखी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट्स होते हैं, कौन कौन से, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में हमने 2 टाइप्स देखे कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। फर्टिलाइजेशन में 2 फर्टिलाइजेशन देखा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमने 2 प्रोसेस देखे, एक तो जाइगोट फॉर्मेशन और एक तो एम्ब्रियोजेनेसिस, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर नंबर 1, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. Hope you understood everything and see you in the next video with the next chapter. Thank you.